خدا کی بحالی کیا ہے؟ کیسے ہمیں بحال ہونا ہے؟ خدا کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں، خدا کے ساتھ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا خدا کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے معاملات خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں خدا کے ساتھ مل کر کس طرح سے اپنی جسمانی اور روحانی اور جذباتی طور پر ہمیں کس طرح سے بحال ہونا ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگے، اور ہم سب جو ہے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ یہ بیماریاں وقتی طور پہ ہوتی ہیں، کئی بیماری جو ہے وہ لانگ ٹرم تک چلتی ہے۔ ان بیماریوں کے لیے ہمیں کئی دفعہ بہت زیادہ جنگ کرنی پڑتی ہے۔ ہاللیلویا۔ بہت سارے لوگ اس فیز کے اندر سے گزرے ہیں، اور میں ذاتی طور پر بھی اپنی زندگی میں بہت سارے ابلیسی حملوں کو محسوس کر چکا ہوں، اور خداوند نے مجھے بہت بڑے معاملات میں سے نکالا ہے۔ کئی دفعہ جسمانی طور پر میں بیمار ہوتا ہوں اور خدا مجھے نکالتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کی بحالی کیا ہے، کیسے ہمیں بحال ہونا ہے۔ خدا کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں، خدا کے ساتھ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا خدا کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے معاملات خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں خدا کے ساتھ مل کر کس طرح سے اپنی جسمانی اور روحانی اور جذباتی طور پر ہمیں کس طرح سے بحال ہونا ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ ذرا یشعیا کی کتاب نکالیے اور اس کا 53واں باب، وہاں کیا لکھا ہے غور سے دیکھیے گا۔ اگر آپ چیپٹر 53 آپ سٹڈی کریں تو وہاں سارا بڑا پروفیٹک چیپٹر ہے یہ، لیکن میں ایک ورس کو کوٹ کروں گا۔ کلام کہتا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم کیا کریں؟ ہم اس کے مار کھانے کے سبب سے، اس کے خون بہانے کے سبب سے، اس کے کچلے جانے کے سبب سے، اس کی صلیبی موت کے سبب سے، اس کے دکھ سہنے کے سبب سے ہم شفا پائیں۔ ہاللیلویا۔ تو الہی شفا جو ہے وہ خدا کی محبت اور طاقت کا مظاہرہ ہے۔ خدا کی محبت کہ وہ انسان سے، آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور وہ آپ کو دکھوں میں مصیبتوں میں نہیں دیکھ سکتا، اور تمام ایمانداروں کے لیے شفا کا حق پہلا حق ہے۔ ہاللیلویا۔ تمام ایماندار جو خداوند یسوع مسیح پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، وہ ان کی تمام تر مشکلات اور بیماریوں پر تمام تر غلبہ دینے کے لیے قادر ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا ہوا ہے، خدا کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا ہوا ہے تاکہ آپ کو شفا دے۔ ہاللیلویا۔ ہم اکثر کہتے ہیں، خداوند تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا۔ ہاللیلویا۔ تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا، تو خدا کا ہاتھ آپ کی طرف
बढ़ा हुआ है। मेरे अजीजों, इलाही शिफा को समझना बड़ा जरूरी है। डिवाइन हीलिंग है क्या? डिवाइन हीलिंग जो है उसका ताल्लुक खुदा के साथ है, उसका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस के साथ है, उसका ताल्लुक रास्तबाजी और खुदा की बादशाहत के साथ है। इलाही शिफा जो है मेरे अजीजों, ये मुफ्त में है, इसमें कोई पैसा दरकार नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई फीसिस, कोई मेडिकल चेकअप, कोई लैब इसमें शामिल नहीं है। कोई भी ऐसा इंसानी अमल दखल इसमें नहीं है, सिवाय इसके कि आप कामिल तौर पर अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें। खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी किसी को शिफा दी, वहां हम देखते हैं यीशु ने एक जुमला कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया। ईमान जो है वो शिफा को ऑपरेट करता है। ईमान क्या करता है जी? शिफा को ऑपरेट करता। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिवाइन हीलिंग इज। इलाही कुदरत, इलाही शिफा, इलाही ताकत, खुदा की ताकत कैसे आपके अंदर ऑपरेट होती है, कैसे आपके अंदर जो है वो जाहिर होती है। खुदावंद यीशु मसीह मुफ्त शिफा देता था, उसमें कोई पैसे नहीं है, लेकिन उसका तकाजा यह है कि वो चाहता है कि वो आप के साथ एक ही कॉन्ट्रैक्ट करे। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्या तू मुझ पर ईमान रखता है? कॉन्ट्रैक्ट ये है, डील ये है। क्या तू मुझ पर ईमान रख, क्या तू चाहता है, क्या तू यकीन रखता है कि मैं तुझे शिफा दे सकता हूं? क्या तू यकीन रखता है कि यीशु जिंदा है? क्या तू यकीन रखती है कि यीशु शिफा दहिंदा है? ये है कॉन्ट्रैक्ट। और जब कोई शख्स यीशु के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है तो इलाही शिफा का पहला कदम शुरू हो जाता है और वो आपके अंदर आना शुरू होती है। हालेलुया। सो सबसे पहले तो हमें समझना है कि इलाही शिफा है क्या। वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया जा रहा है, बदकारी के सबब से हमारी बदकारियां हैं, गुनाह है, ज़नाकारी है, हरामकारी है, शहवत परस्ती है, नशे हैं, बुग़्ज़ है, कीना है, तफरके हैं, बिदतें हैं, जुदाइयां हैं, नापाकियां हैं, हर तरह की गलाजत है, गंदगी है, झूठ है, फरेब है, हर तरह का गुनाह है जो मुआशरती तौर पे है, जो रूहानी तौर पे है, जो जिस्मानी तौर पे है, जो जज्बाती तौर पे है और जो ज़हनी तौर पे हम गुनाह सोच कर करते हैं। वो तमाम के तमाम गुनाह जो है वो मिलकर हमारे लिए बीमारियों को प्रोड्यूस करते हैं। और वो बीमारियां जो है वो जिस्मानी तौर पर भी हैं, रूहानी तौर पे भी हैं, जज्बाती हैं, ज़हनी बीमारियां हैं। और हम उन तमाम तर बीमारियों के इलाज के लिए दुनिया के महंगे महंगे डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन उनके पास आपको शिफा देने के लिए कोई मेथड नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। आप डिप्रेशन का इलाज देखें, सिवाय डॉक्टरों के पास नींद की गोलियों के और कुछ नहीं है, या सिवाय आपको तसल्लियां देने के और कुछ नहीं है। मेरे अजीजों, गौर कीजिए खुदा का कलाम क्या कहता है। Now you have to learn it. कहां से, कैसे आपने शिफा को रिसीव करना है। हम सब शिफा पाना चाहते हैं, हम बीमारियों से भरे हुए हैं, कई दफा हम जंग कर रहे होते हैं, बट वी नेवर नो हाउ टू फाइट। मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई डॉक्टर यूसुफ माइकल की। उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि दो भाई थे और दोनों जो है वो जब अपना सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं किसी दूसरे घर के अंदर, तो वो अपना फ्रिज उठाते हैं और फ्रिज, एक भाई कह रहा है कि चलो यार फ्रिज उठाओ, और एक जोर जो है वो उस तरफ लगा रहा है, दूसरा जोर इस तरफ लगा रहा है। एक जोर इस तरफ लगा रहा है और दूसरा जोर इस तरफ लगा रहा है। तो उससे क्या होता है कि फ्रिज जो है वो उनसे उठाया ही नहीं जा रहा, क्योंकि दोनों ही मुखालफ सिमत के अंदर जोर लगाई जा रहे हैं। वी नेवर नो सम टाइम कि हमें किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। हमें
ईमान के जरिए से शिफा को रिसीव करना है। मेरे अजीजों बोले ईमान, ईमान। खुदा का बंदा दाऊद बारहा इस बात को बयान करता है, मेरा ईमान तुझ पर है, मेरी उम्मीदें तुझसे हैं, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगाऊंगा, मैं तेरी तरफ निगाह करूंगा, मेरा चौपान तू है। ईमान जो है वो आपका बड़ा ही मजबूत होना जरूरी है। और आज हमारे ईमान के ऊपर बेशुमार हमले होते हैं, हर रोज हमले होते हैं। ईमान के ऊपर हमले जो है वो मीडिया के वसीले से हो रहे हैं, दोस्तों के वसीले से हो रहे हैं, तालीम के वसीले से हो रहे हैं, और डिस्करेजमेंट है, रद्द किया जाना है। हम बहुत सारी चीजों से डिस्करेज हो जाते हैं, हम क्विट करते हैं, हम कहते हैं नहीं यार बाइबल से हमें कुछ नहीं मिल रहा, दुआ से हमें कुछ नहीं मिलता, कलाम पढ़ने से हमें कुछ नहीं मिलता, और हम दुआ करना छोड़ देते हैं। अल्टीमेटली सोचते नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस जो कुछ भी है लिखा हुआ है, शायद कभी होता होगा, आज मेरे साथ कोई वाकया अभी तक नहीं हुआ। We have no experience of God, हमने कभी खुदा का तजर्बा नहीं किया। ईमान आपकी जिंदगी का अहम फैक्टर है, और ईमान के जरिए से शिफा आपकी जिंदगी में आती है। ईमान एक ऐसा दरवाजा है जहां से शिफा ने आपके अंदर दाखिल होना है। अब ईमान जो है वो तरह तरह का है। एक ईमान जो है वो तकदीस करने वाला ईमान है, एक ईमान निजात बख्शने वाला ईमान है। मेरे चीजों कलाम में लिखा है, अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है तो तू इस पहाड़ से कहे कि वो मैदान हो जाए तो मैदान हो जाएगा, और इस पहाड़ से कहे कि वो समुंदर में जा पड़े तो वो समुंदर में जा पड़ेगा। ईमान कितना सा काफी है जी? इतना ईमान, इतना 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 भी काफी है। कभी आप सोना खरीदने जाए तो वो एक कतरा सोना जो है ना उसकी भी कीमत लाखों में हो चुकी है। अब एक ड्रॉप जो है सोने का, एक ड्रॉप, उसकी वैल्यू भी हजारों में है। ईमान की वैल्यू जरा गौर कीजिए। ईमान जो है वो बहुत बड़ा दरकार नहीं है, थोड़ा ईमान भी आपके लिए बहुत है। खुदा के कलाम में खुदा यीशु मसीह बारहा ईमान का जिक्र करते हैं, और अपने शागिर्दों को वो कई दफा डांटते हैं, तुम्हारा ईमान कहां है। और कई दफा वो थोड़े ईमान के लिए कहते हैं आई कम एतकादो। कई दफा वो ज्यादा ईमान के लिए तारीफ करते हैं, मैंने ऐसा ईमान पूरी बनी इस्राइल में नहीं देखा। सही वांट टू शेयर इट कि ईमान जो है वो आपके लिए बड़े दरवाजे खोलता है। यीशु पर कामल ईमान, खुदा यीशु मसीह पर कामल ईमान जो है वो शिफा और बहाली के दरवाजे खोल सकता है। इवन कि आप इस दुनिया से रुखसत भी हो जाएं तो भी ईमान काम करता है। आप कहेंगे भाई साहब ये क्या बात आपने कर दी। लाजर जब बीमार था तो खुदा यीशु मसीह को खबर दी गई कि तेरा दोस्त बीमार है, आकर जल्द उसको शिफा दे, क्योंकि वो करीबुल मर्ग है, वो मरने वाला है। खुदा ने क्या, मैं आ जाऊंगा, सब्र करो। वो खुद ही 4-5 दिन लेट गए हैं अपना जलाल जाहिर करने के लिए, और खुदावन के शागिर्द कहने लगे खुदावन हमारा दोस्त लाजर मरने वाला है, पहले जाके उसको शिफा दे दें। सब्र करो। खुदावन सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब खुदावन जाते हैं तो दूर से बहनें आती हैं और कहती हैं आए खुदावन काश कि तू पहले आ जाता और हमारा भाई ना मरता। मेरा अजीजों ईमान जो है वो ऑपरेट करता है। यीशु ने कहा कि क्या तू ये ईमान रखती है कि मैं क़यामत और जिंदगी का मालिक हूं। अगर कोई मुझ पर ईमान रखता है को वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। उसने कहा मैं ईमान रखती हूं। हालेलुया हालेलुया।
उसने कहा मैं ईमान रखती हूं कि मेरा भाई जिंदा होगा, लेकिन मैं ये नहीं सोच सकती कि होने ही जिंदा हो जाएगा। उन्होंने कहा फिर मैं तेनों अपना जलाल जाहिर करना। कहां रखा हुआ है लाजर को? खुदावन वो तो 4 दिन का मुर्दा है, उसको तो कीड़े भी खा रहे होंगे, अब स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, मुझे बताओ कहां रखा है। और वो कब्र पर जाता है। सारे गांव वाले जा रहे हैं माजरे को देखने के लिए कि यीशु क्या करने लगा है इस मुर्दे के साथ। खुदा यीशु मसीह खड़े बुलंद आवाज के साथ एक जुमला बोलते हैं, ऐ लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। और लाजर जो है कब्र में से बाहर आ जाता है, क्योंकि ईमान ऑपरेट होता है। मेरे अजीजों, आप क्या सोचते हैं जिस हस्ती के साथ आप बात करते हैं, दुआ करते हैं, क्या वो मुर्दा है? मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा कि खुदा जिंदों का खुदा है। हालेलुया। यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब जो आसमान पर जिंदा है। इसलिए ईमान कायम करें। नंबर 2, दुआ करना शुरू करें। दुआ हम सभी करते हैं, लेकिन दुआ का अंदाज जो है वो फर्क होता है। कई दफा हमें दुआ के अंदाज को बदलना जरूरी होता है। कई दफा हमें बैटल प्लान के साथ दुआ करनी है। कई दफा हमें ऐसी दुआ करनी है जिसके अंदर रिजल्ट सामने आना शुरू हो। नंबर 3, आजिज़ी इख्तियार करें, खाकसारी इख्तियार करें। अपने अंदर से तकब्बर, घमंड, बदी, गरूर, गुस्सा, नफरत एक दूसरे के लिए, बहनों भाइयों के लिए, अजीजों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर तरह की तनकीद, हर तरह की बदी निकाल दें। जब आप अपने आप को खाली कर देंगे तो खुदा की इलाही शिफा आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, बोले हालेलुया। सो आपने क्या करना है? आपने अपने आप को खाली करना है। आप कहेंगे भाई साहब साढ़े अंदर केड़ी चीज है जी मैं खाली करा? खुदा आपको बताएगा कि कौन सी चीज आपको खाली करनी है। आपने अपने आप को खाली करना है। अपने आप को खाली करें। अपने अंदर को उन तमाम चीजों के साथ जिनसे आप भरे रहते हैं, गुनाह से भरे रहते हैं, बदी से भरे रहते हैं, गुस्से से भरे रहते हैं, खाली करें और खुदावंद आपको बहाल करना शुरू करेगा। मेरे अजीजों, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और खुदा ये चाहता है कि वो आपको आजाद करे। खुदा आपसे प्यार करता है और वो ये नहीं चाहता कि आप बीमार रहें। खुदा ये नहीं चाहता कि आप बीमारी के बिस्तर पर पड़े रहें। God always want to heal you. खुदा ये चाहता है कि आप मुकम्मल तौर पर आजाद हो। कौन कौन आजाद होना चाहता है? हालेलुया। मेरे अजीजों, देखिए इस दुनिया के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और हम सब किसी ना किसी प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं। कई दफा हम नहीं बताते, वो अलग बात है, लेकिन खुदा नू ताड़े सारे मामलात दा पता है। खुदा नू सारे मामलात दा पता है। वो आपके अंदर से वाकिफ है। वो आपके आने जाने, आपके माजी हाल और मुस्तकबिल को भी अच्छी तरह से जांचता है, जानता है। मेरे अजीजों, झुक दे, खुदा के सामने झुक जाए, खुदा के हजूर खाकसार हो। कलाम में लिखा है 2 तवारीख 7:14 के अंदर, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान से सुनकर उनके गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। मेरे अजीजों, ये सबसे मुश्किल काम है, खाकसारी इख्तियार करना। खाकसारी का मतलब है कि इंसान अपने खुद ही को मारे, अपने सेल्फ को डिनाई करे। मैं क्या हूं, मेरा रुतबा क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, मेरी एजुकेशन, मेरा स्टेटस, मेरी वेल्थ, मेरी दौलत, मेरे पास फलां फलां चीजें, सब कुछ मार कर खुदा के हुजूर बड़े ही वफादारी के साथ
खुदा के हजूर झुक जाए और खुदावन से कहे, खुदावन तू मुझे मेरी कमजोरियों के ऊपर गलबा अता कर, और वो आपको गलबा देगा। नंबर 4, तौबा कर ले। हालेलुया, तौबा करें। आप कहेंगे भाई साहब बड़ा मुश्किल काम है तौबा करना। कई दफा हम लोगों को मरी लेके जाते हैं तो उथे असी तौबा करा देने हैं, लोग उथे जल्दी ना लोग तौबा कर लेंगे, और जो पहाड़ियों को देखते हैं थले देखते हैं तौबा तो सब असी उथे पहले ही कहने भाई तौबा कर लो, सब तौबा कर लेते हैं। मेरे अजीज, तौबा बहुत जरूरी है। अपने गुनाहों से तौबा करें, माफी मांगे, और बहुत सारे बीमारियां हमारे गुनाहों की वजह से। कलाम कहता है मरकस 2:5 के अंदर, खुदा यीशु मसीह ने जब उस मफलूज को शिफा दी तो वहां लिखा है कि खुदावन ने शिफा देने के बाद उसको कहा फिर गुनाह ना करना। क्या कहा? ऐसा ना हो कि तेरा हाल जो है वो पहले से ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि जब तू गुनाह करेगा तो इब्लीस दोबारा तेरे जिस्म के अंदर आएगा और वो तेरा बुरा हाल कर देगा। दोबारा गुनाह ना करना। जब हम तौबा करते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, नई जिंदगी का अहद कर लेते हैं, नई जिंदगी में आ जाते हैं, तो रिवर्स गियर जो है ये बड़ा ही खतरनाक है। रूहानी जिंदगी जो है उसके अंदर रिवर्स गियर है ही नहीं है। खुदावन ने ऐसी गाड़ी बनाई है ਜਿਹਦੇ ਚ रिवर्स नहीं लगता, ਇਹਦੇ ਚ सारे गियर फॉरवर्ड देने, ये आगे वाले गियर हैं सारे, और आपने आगे बढ़ना है। तौबा के बाद रूहानी जिंदगी का आगाज करना है। शिफा के लिए आपने तौबा करनी है, आपने माफी मांगनी है। हर वो गुनाह जो आपकी जिंदगी में हुआ है, ऐसे गुनाह जो बेबाकी के गुनाह है, ऐसे गुनाह जो माँ बाप से चले हुए आ रहे हैं, ऐसे गुनाह जो अबाओ अजदाद से चलते हुए आते हैं, माँ बाप ने किए हुए हैं, जादूगरी है, ज़िनाकारी है, हरामकारी है, शहवत परस्ती है, ये ऐसे गुनाह हैं जो हमारी सरिश्त के अंदर शामिल हो जाते हैं, और ये नस्ल दर नस्ल जो है ये हमें परेशान करते हैं। ऐसे गुनाह भी है। सो हमें तौबा करनी है उन गुनाहों से। अपने माँ बाप, अपने परदादा और अपने खानदान के बिहाफ पर हमें खुदा से माफी मांगनी है, ताकि खुदा हमें माफ करे, क्योंकि कलाम कहता है कि वो नस्ल दर नस्ल हमारा मददगार खुदा है। हमें क्या करना है? तौबा करनी है और खुद को कलाम में ढूंढना है। हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है। कलाम जो है वो शिफा देता है। मैं खुदा के खादम की टेस्टिमनी सुन रहा था। खुदा का खादम डायरेक्ट प्रिंस, बहुत बड़ा नाम, और बड़ी खुदा ने उनको खिदमत दे रखी। अपोलोजेटिस, बड़ा ही खूबसूरत वर्शिपर और खुदा का एक अजीम खादम। उसने कहा कि मैं जब फौज में था तो मेरी ड्यूटी जो है वो सूडान में लग गई, और वहां मैं 3 साल रहा, और उन 3 सालों में कहता मैं बीमार हो गया, ऐसा बीमार हो गया कि मुझे एक स्किन प्रॉब्लम होगी कि मैं करीबुल मरग हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। उसने कहा कि मैं इस हद तक बीमार हो गया कि मुझे वो स्ट्रेचर पर लेटा कर दोबारा घर छोड़ कर गए फौज। और उसने कहा कि मैंने एक नया बैटल प्लान बनाया इस शिफा को हासिल करने का, और उसने कहा कि मैंने खुदा के कलाम में से पढ़ा। ज़बूर 107:20 में लिखा है वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है। हालेलुया। और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। उसने कहा यार ये तो कलाम तो शिफा दे रहा है। और उसने कहा कि जब मैं 3 वक्त की दवाई खा सकता हूं तो क्या 3 वक्त में दुआ और कलाम नहीं पढ़ सकता? Yes, God has inspired him. खुदा ने उसको एक बैटल प्लान दिया। और उसने कहा कि जब मैं दवाई खाता था, दवाई खाने के बाद मैंने हर दवाई के बाद खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया और दुआ की। और कलाम में लिखा है वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। क्या था, मैंने ये काम शुरू कर दिया।
اور 3 वक्त में दवाई खाता था, तीनों वक्त में ये काम भी करता था साथ. एंड राइट आफ्टर मैनी मैनी मंथ्स जो है खुदा मेरी जिंदगी में तब्दीली लेकर आता रहा. और एक वक्त आया कि कलाम के वसीले से मैं मुकम्मल तौर पर आजाद हो गया. हालेलुया, हालेलुया. मेरे अजीजों, कलाम बंधनों को तोड़ता है, कलाम आजाद करता है. और कलाम जब नाजुल होता है वो शिफा देता है, हलाकत से रिहाई बख्श देता है. चाहे मौत की बीमारी क्यों ना हो, चाहे ऐसी बीमारी क्यों ना हो जिसका नतीजा मौत हो, वो मौत की बीमारी में से भी आपको निकालने की कुदरत रखता है. इसलिए कलाम को ढूंढें, सर्च करें उसके वादों को, और उसके वादे बार बार उसको याद करवाएं, बार बार उसको याद करवाएं. खुदावंद देख, तेरे कलाम में ये लिखा है, तेरा कलाम ये कहता है, तेरा कलाम ये कहता है, तेरा कलाम ये बयान करता है. और जितने लोग दवाई खाते हैं, प्लीज ये काम शुरू कर दे. खुदावंद आपको बहाल करने वाला है. हालेलुया, हालेलुया. तौबा करें. और नंबर 6, खुदा के खादमों से दुआ करवाएं, बुजुर्गों से दुआ करवाएं. ये जरूरी नहीं है कि आप कोई बुढ़ा या बाबा लबो, ये चिट्टी दाढ़ी, चिटे चिटे वाल होते, खुदा कलाम से जी बुजुर्गों को नहीं करानी है तो ही होर दूसरे बाबियां को टुर जाओ. होर भी तो बाबे हैं ने जी, क्यों जी भाई साहब? आसे पासे दूसरे नजर देखिए. वो जादूगरों के पास नहीं जाना, ऐसे बाबों के पास नहीं आपने जाना. कलाम कहता है अगर तुम में कोई बीमार हो, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, ना कि होर बाबियां नु. कई लोग की बाबियां को भी जाते, चिल्ले भी करते, चढ़ावे भी चढ़ाते, मुर्गियां भी वारते हैं जी. मैंने ऐसे भी लोग देखे. फिर मेरे को भी आने भाई साहब दुआ कर दियो. भाई साहब की दुआ करन ताड़े ते, आप वो सारे काम भी कर रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं. कौन सी दुआ का असर आपके ऊपर होगा? उसकी का होगा या मेरी का होगा? कौन सी दुआ आपके ऊपर असरअंदाज होगी? मेरे अजीजों, हमें खुदा के खात्मों से दुआ करवानी है. जब भी दुआ की जाती है, ईमान की दुआ जो है वो ऑपरेट होती है. और वो ईमान आपका भी हो सकता है, खादमों का भी हो सकता है, आपके दोस्तों का भी हो सकता है, आपके अजीजों का, रिश्तेदारों, बहनों भाइयों का भी हो सकता है. ईमान ऑपरेट होता है. इसलिए खुदा के खात्मों से, जिनके पास गिफ्ट ऑफ हीलिंग है, उनके पास जाए. जिनके पास ईमान की जो शिफा की नेमत है, उनके पास जाए और उनसे दुआ करवाएं, तो आप शिफा पा जाएंगे. नंबर 7, एक और अहम चीज, शुक्रगुजारी करना शुरू करें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. शुक्रगुजारी बहुत कम लोग करते हैं, मैंने देखा है. बहुत कम लोगों के मुंह पे शुक्रगुजारी के अल्फाज होते हैं. खुदावन ने हमें शिफा दी है भाई साहब, खुदावन ने हमें बहाल किया है. अच्छा, शुक्रगुजारी हमारे दिल में तो होती है, हम जाहिर नहीं करते. खुदा ने काम कर देता है पर कोई इजहार नहीं है, कोई चर्च में आके लोगों को बताना नहीं है, कोई गवाही नहीं है. दिल च रखे है भाई साहब, मैं ना बस शर्मांदी रही है, लेकिन काम खुदा ने मेरा कर छड़िया सी तुहाड़ियां दुआवां नाल, पर वो बस मैं ना, मेरा दिल नहीं कीता मैं दसा लोगों नूं. भाई यीशु को बताएं कैसे आप शुक्रगुजारी. मुझे बताएं, खुदा यीशु मसीह ने जब 10 कोड़ियों को शिफा दी तो कितने लोगों ने आके यीशु को सिजदा किया? तो यीशु ने की किया? ओ बाकी 9 किथे ने? खुदावन बस वो जी सन, शिफा तो उन्होंने भी हो गई सी, पर वो कहते सन ठीक है बस हो गई है, हुण की असीं जरूरत सानू की यीशु दी, ठीक है शिफा हो गई सानू. हम लोग खुद गर्ज लोग हैं, बहुत ही खुद गर्ज. ਜਦੋਂ शिफा चाहिए यीशु के कदमां च रोलते फिरने आ, ਜਦੋਂ मिल जाती है फिर यीशु कौन ते असी कौन. और कई दफा बहनों भाइयों के लिए दुआ करें, भाई सब दुआ करें जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए. दुआ करी दी, जॉब अगले दिन ही मिल जाती. महीने बाद पता चलता है यार मुंडा संडे आंदा ही नहीं चर्च. और भाई साहब टाइम ही नहीं मिलता चर्च आंदा. चर्च कितने आई है? हाँ दुआ कराई सी भाई साहब तुसी, हालेलुया, जॉब मिल गई.
وہ جدن دی جاب ملی خدا بھی چھڑ گیا, چرچ بھی چھڑ گیا, سب کچھ ہی چھڑ گیا. یار کیڑیاں دعا, کون سی ہم دعائیں کریں جس سے آپ کو بحالی کے ساتھ ساتھ راست بازی کا انعام بھی ملے. دکھ ہوتا ہے, پھر شکر گزاری کی عادت ڈال دیں. جب آپ کو خدا گفٹ دے رہا ہے تو اس سے آپ کی درخواستیں شکر گزاری کے ساتھ ہونی چاہیے. اور شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر روز خدا کی حضوری میں جھکے, لوگوں کو بتائیں, اپنی گواہی بتائیں کہ خدا نے کیسے بڑے بڑے عظیم کام میرے لیے کیے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس سامری عورت کی مانند بن جائیں. جب یسوع سے وہ ملی تو اس نے یسوع کے بارے میں سارے گاؤں کو بتا دیا اور کہا کہ دیکھو مجھے خرستس مل گیا, مجھے یسوع مل گیا, مجھے میرا نجات دہندہ مل گیا, اور مجھے خداوند مل گیا. شکر گزاری کیا کریں. جب خداوند آپ کے لیے تھوڑا سا بھی کام کر دے, آپ کی زندگی میں تھوڑا سا بھی کام, خوشی سے لوگوں کو بتائے, خوشی سے چرچ میں ہدیہ لے کر آئے, آپ شکر گزاری کریں. خداوند تو نے ہمارے لیے دروازے کھولے. And number 8 is مستقیم دعا کریں. خاص طور پر اپنے درد بیماریوں کے لیے خدا سے دعا کریں ایوری ڈے. کلام کہتا ہے زبور 142:2 میں, میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں, میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں, میں اس کے حضور فریاد ایوری ڈے. ڈونٹ فرگیٹ, خدا کو نہ چھوڑے, خدا کو یہ بتاتے رہے خداوند میرا یہ دکھ ہے, میرا یہ دکھ ہے, میرا یہ دکھ ہے, میرا یہ دکھ ہے. ہم کہتے ہیں خداوند ایک دفعہ 10 چھٹے دے, تو نیند میں ہی دے دیتا ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں زیادہ سوئیں گے تو زیادہ ملے گا, کیونکہ کلام چ لکھا ہے نیند میں دے دیتا ہے. کیوں جی 12 گھنٹے کی نیند ہوئے گی تو اچھا ہے, ہو سکتا ہے جلدی مل جائے. کئی تے 18 گھنٹے کی نیند لے کے کہتے ہیں خداوند جلدی دے دے, کیونکہ تیرے کلام چ لکھا ہے نیند چ تو دے دینا ہے. ڈونٹ مس انٹرپریٹ دا بائبل. کلام کہتا ہے مسلسل دعا کرنی ہے, مستقیم رہیں, اپنے کام کے لیے, اپنے مقصد کے لیے ہر روز دعا کرتے رہیں. ایک خاص کام کریں, خدا کے حضور فریاد کریں اور اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتے رہیں. ہاللیلویا. کون کون ایسا کر رہا ہے؟ جڑے نہیں کر رہے وہ آج تو شروع کر دیں. جے تسی چاہتے ہو کہ ایسے سال چ کوئی برکت تانوں ملے, کرسمس سے پہلے پہلے آپ کو برکت ملے گی. ہاللیلویا. پریز اللہ. ہاتھ کھڑا کریں جو چاہتے ہیں خداوند کرسمس سے پہلے پہلے مجھے برکت ملے تو وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. پریز اللہ. ہاللیلویا. 2025 کا سال آپ کے لیے بڑا ہونے والا ہے. جے اے کلام بار بار سنو گے نا تو اچھا لگے گا, اور اس پہ فالو کریں جو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں. نمبر 9, روح القدس کی طاقت کا استعمال کریں. پریز دی لارڈ. بولے ہاللیلویا. روح القدس کی طاقت ہمیں دی گئی ہے. سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی قوت ہے جو ہمیں اس قابل کر دیتی ہے کہ خدا تک ہم پہنچ سکیں. آپ ذرا غور کریں کہ اگر آپ چیف منسٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کے سب سے بڑے جج کے پاس جانا چاہتے ہیں تو کیا استعمال کریں؟ کون سا رستہ آپ استعمال کریں گے؟ اپنا کیس لے کر کہاں جائیں گے؟ وکیل کہے گا نہیں بھائی میری اتھوں تک ایکسیس نہیں ہے. دوسرا وکیل کہتے ہیں یار میری بھی وہاں تک رسائی نہیں ہے, میں وہاں نہیں لے کر جاتا. نہیں یار مجھے کوئی ایسا شخص دیں جو مجھے بالکل جو سپریم کورٹ کا سب سے بڑا جج ہے وہاں تک پہنچا دے. پھر کوئی ایسا شخص اگر آپ کو ملتا ہے تو پھر شاید آپ اس تک اپنا کیس لے کر جائیں. ایسے ہی خدا کا پاک روح ہے میرے عزیزوں. اگر روح القدس کو آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کا مسئلہ ڈائریکٹ خدا تک لے کر جائے گا. ہاللیلویا. اور جب آپ روح القدس کی زبان کے اندر غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کریں گے تو سمجھ لو کہ تاڑی جتھے تاڑے 6 مہینے لگنے اتھے مہینے چی تاڑا کام ہو جا رہا ہے. کیونکہ آپ ڈائریکٹ آپ روح القدس کی زبان میں دعا کر رہے ہیں, ڈائریکٹ آپ خدا کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی آپ خدا کے ساتھ 1 to 1 جو ہے وہ اپنے معاملے کو
پیش کر رہے ہیں, آپ خدا کی زبان کا استعمال کر رہے ہیں, آپ خدا کے ساتھ حلیمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کلام کہتا ہے اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا, تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح القدس کے وسیلے سے زندہ کرے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. کیونکہ وہ تم میں بسا ہوا ہے, وہ تمہارے اندر بسا ہوا ہے. میرے عزیزو, آپ نے روح القدس کو یوز کرنا ہے, اور اگر آپ کو روح القدس ملا ہے, روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے, آپ کے اندر روح القدس موجود ہے, سو یوز دیٹ گفٹ آف دا ہولی اسپرٹ. اپنی دعا میں روح القدس کا استعمال کریں, غیر زبانیں بولیں اور غیر زبانوں میں دعا کیا کریں. اور نمبر 10 جو ہے, دوسروں کی مدد کریں, دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوں. کلام کہتا ہے تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ, یوں مسیح کی شریعت کو پورا کریں. ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوں, ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کریں. آپ کی دعا سنی جائے گی. آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کریں, نیک کام کریں, خدا کے کام کریں, راست بازی کے کام کریں, اور شفا کے لیے اپنے آپ کو کھڑے ہوں. ہاللیلویہ. آئے ہم سب کھڑے ہوں.